बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो जानना चाहूँगा, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर ऑफ दिस फिल्म अप्रोच यू? I still remember I met DK sir and Rucha from the Fox, and they narrated me the story, and I was so excited because in this film I'm playing the different kind of character whatever I have played before. It's a full-fledged commercial film which has lots of action, drama, suspense, and first time you will see me doing different kind of action, because I did little bit in NS10 but that was not in that, but that was in very real zone. But in this film I can utilize whatever I have learned before. Last 6 years I'm learning kickboxing and martial arts, so I have got a chance to utilize little bit, but hopefully I'll do better in other films also. But in this I had a great fun, and I was excited about that, and my role is also very different because whenever he comes he creates something, and there are lots of turns and twists in the film, and this character has a lots of liberty, so I enjoyed every bit of that, and I was so excited, like I'm getting this kind of chance to work with the good production house, and I love DK Raj sir. Both are very they always make different kind of films which has good content and which has comedy, action and everything mixture, like a full entertaining film. So when I read it and I met them when they narrated me this script, I was like, yeah, this is a film which I would love to do that. Yeah. Action कितना enjoy करते हैं आप? A lot, because you know something, you are trained in that, and when you get a chance to do that, so if you are well prepared before, so I enjoyed like anything. I still remember one incident. Cyril, our action director, he's from Hollywood, so he said he choreographed something, 12 steps, kicks and mixture of kicks and hand fighting, and he said, Darshan, would you like to try in a one shot? I was confident, yeah sir, why not? He said, sure. He said, yeah. I was like, okay, let's do that. And then he handled the camera on his shoulder. One take I gave, and he started clapping, and the entire unit clapped for me, and he just loved it like anything. He said, believe me or not, in Hollywood also people are, they do 4 to 5 steps at one time, and you did lots of 10 to 12 this kind of steps in one shot. It was brilliant. So I think when you know something and you get a chance to perform that, you enjoy that. ओके दर्शन, क्या वजह है प्रमोशन में हम आपको बहुत कम देख रहे हैं? कोई खास स्ट्रेटेजी है, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है? Yes. कि आपको छुपा के रखा जा रहा है और ये पूरा सरप्राइज एलिमेंट हो रहा है? या वही वो हो रहा है कि जहाँ भी मेरा कैरेक्टर का, अगर आपने कुछ देखेंगे, जैसे आप कुछ दिन फिल्म देखने रिलीज होने को रह गए, जब आप फिल्म देखेंगे, जहाँ भी मेरा कैरेक्टर कुछ बोलेगा, सो आपको फिल्म रिवील हो जाएगी, या मेरा कुछ पार्ट दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फिल्म क्या है, क्योंकि मेरा रोल बहुत ही डिफरेंट रोल है और बहुत ही टर्न्स एंड ट्विस्ट आता है फिल्म के अंदर, और इसीलिए शायद ये स्ट्रेटजी हो सकती है प्रोडक्शन हाउस की. सो दैट्स द रीजन आई थिंक. I'm repeating myself. Will be a surprise element in the film. Yes, that's what I told you. कि whenever I'll come, जहाँ भी मैं आऊँगा, बहुत ही टर्न्स एंड ट्विस्ट लाऊंगा मैं इस फिल्म के अंदर. क्या चैलेंजिंग रहा है वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? चैलेंजिंग ये रहा कि इसमें हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे एक्शन डायरेक्टर हॉलीवुड से हैं, वो बहुत ही डिफरेंट तरह का एक्शन देना चाह रहे थे इस फिल्म के अंदर, और वो एक्शन को हमने काफ़ी टाइम तक उसकी रिहर्सल्स की. सो अपने आप को मोल्ड करना पड़ा उस तरह से. वो बहुत फिजिकली बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहा, बिकॉज आप पूरा दिन एक ही एक्शन कर रहे हैं, एक ही उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो था. उसके अलावा इस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना, बिकॉज दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू इन ऑल द फिल्म्स. जब भी मैं कोई फिल्म करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कैरेक्टर को अपने अंदर ला सकूँ. सो वो कैरेक्टर को लाना, जब आप फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा कि कितना टफ रहा होगा मेरे लिए. उसको इस तरह मोल्ड करना बहुत टफ था. अदरवाइज डायरेक्टर हमारे बहुत कमाल थे, प्रोडक्शन हाउस बहुत कमाल था, कोई एक्टर्स बहुत अच्छे थे, तो सबके साथ काम करके मज़ा आया. बस ये था कि मेहनत आपको कैरेक्टर के लिए करनी पड़ती है, तो आई थिंक वो हर एक्टर का काम है जो मैंने किया. ओके, आपके किरदार का नाम जानना चाहूँगा. याकूब. अच्छा, याकूब, क्या याकूब तो किरदार आप निभा रहे हैं आपकी पिछली इमेज तोड़ देगा? बिल्कुल. अगर आप, हो सकता है कि कुछ लोगों को टाइम लगे कि मैं ये सेम दर्शन है या नहीं,
जिन्होंने मेरी फिल्में अभी तक देखी हैं। Even in Sarabjit you played a Muslim guy, you know. After there is another one which is Yaqub. या मैं जहाँ भी जाता हूँ एक्चुअली सब कहते हैं कि आप बहुत अच्छे थे मैरी कॉम में, तो उनके साथ वाले बगल वाले उनका हस्बैंड वाइफ या उनके फैमिली वाले बोलते हैं आप बहुत कमाल थे एनएसटेन में, तो वो ही कंफ्यूज होता है, अच्छा ये वो सेम ही था। सो टच वुड आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग, और वही बेस्ट एक्टर के लिए होता है कि जब आपको जो दोनों फिल्में किसी ने देखी पहचानने में टाइम लगे, और वही सरबजीत के लिए लोगों को टाइम लगता है कि अरे इसने अवैश्य, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एजेड अपने आप को प्ले किया था उसमें। सो यू नो, तो ऐसे ही सरप्राइज एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा याकूब में। सो आपको थोड़ा सा शुरू में लगेगा कि अरे ये दर्शन है। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। ओके, एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का सिद्धार्थ के साथ, यू नो डायरेक्टर के साथ, इवन शुभ शेट्टी इज अ पार्ट ऑफ इट। यस यस, शेयर एक्सपीरियंस। या मेरे कई सीन्स हैं उनके साथ। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? उनकी पर्सनैलिटी कमाल, अन्ना है वो हमारे, और जब वो आते हैं सेट पे तो यू नो एक उनका एक ऑरा है, उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। और जब आप साथ में काम करते हो और इतने मजे हुए, इतने सीनियर एक्टर से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, आपको कुछ मिलता है, तो आप और यू नो फैल जाते हो, आप और कोशिश करते हो अच्छा करने की। सो वो ही रहा उनके साथ, वो बहुत ही एनकरेज करते हैं अपने को एक्टर्स को, और मेरे बहुत अच्छे सीन्स हैं उनके साथ, बहुत ही पावरफुल सीन्स हैं, एंड आई एन्जॉयड दैट। एंड सेम विद सिद्धार्थ, मुझे अभी तक याद है कि मैं पहली बार सिद्धार्थ को फॉक्स के ऑफिस में मिला था, जब हम डीके और राज सर के साथ रीडिंग कर रहे थे। और अपना सिद्धार्थ के अंदर ये खूबी है कि वो पहली ही मीटिंग में यू नो आपको अपना बना लेता है, और ऐसा हो जाता है कि हम पता नहीं कितने सालों से जानते हैं, और वही केमिस्ट्री आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। हमारी बहुत टचवुड बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, हम साथ में खाते पीते थे, और साथ में ही यू नो एक्टिंग के ऊपर हमारी बातें होती थी, जिम पे, बॉडी के ऊपर, फूड के ऊपर, तो बहुत ही यू नो जब आप इस तरह की केमिस्ट्री होती है, आपको अपने को एक्टर के साथ एक फ्रेंड की तरह आप बन जाते हो, तो वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है। तो मेरा बहुत ही धमाकेदार वो रहा, क्योंकि हम एक दूसरे को एनकरेज करते थे। कई बार होता था कि मैं सिद्धार्थ को बोलता था सीन देखने के बाद मॉनिटर में कि एक और ट्राई करें, वो बहुत एंथो रहता था, लेट्स डू दैट। कई बार वो सजेस्ट करते थे। सो यू नो जब आपको इस तरह का एक वो मिलता है, आप जब इस तरह के कोई एक्टर के साथ काम करते तो वो स्क्रीन पे दिखेगा, तो आई थिंक लोगों को ये मज़ा आएगा देखने में। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज वो अभी आए हैं, वो अपना हर इंसान का एक काम करने का तरीका है, और वो हमारी इंडस्ट्री से हैं, वो जानते हैं सब, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ओके, जेंटलमैन को कितना फायदा होगा खुशी जोशी के आने से? आई थिंक वो तो जो होना था अभी तक हो चुका है। सो फ़ायदा तो ऑब्वियसली सबको ही होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, उनकी एक जैसी सोच है, ब्रॉड सोच है, तो ये इंडस्ट्री के लिए बेटर है। Okay, what message do you want to give to the audience, especially fan of Darshan, why they come and be a part of the gentleman? Yes, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैसे मैरी कॉम, एनस्टाइन, सरबजीत में मेरे कैरेक्टर्स को देखा, सराहा, मुझे प्यार दिया। मैं पूरे विश्वास है मुझे कि आपको इस फिल्म में मैंने मेहनत भी की है, कोशिश की है, और आपको ये याकूब जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल अपनाई है। इसमें मैंने अपनी इमेजिनेशन यूज़ की है, एक्शन यूज़ किया है, और अपने आप पे काफ़ी काम किया है। तो आई थिंक ये आप लोगों को पसंद आया, और यही मैं उम्मीद रखता हूँ, और आप लोगों को पसंद आएगा तो नथिंग लाइक दैट, और वो मेरे लिए बल्ले बल्ले होगा। सो प्लीज़ वॉच द फिल्म। एनएसटेन की बात करूँ या मैं दूसरी फिल्म सरबजीत की बात करूँ, जिस तरह किरदार आप निभा रहे हैं ना, इट इज मोर ऑफ अ सपोर्टिंग यू नो एक्टर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और बहुत नोटिस करे जाते हैं आपके किरदारों को लेकर। आपको लगता है कि सेंट्रल लीड रोल करना चाहिए विद अ फुल कमर्शियल मसाला फिल्म, यू नो, और रोमांटिक वन? हाँ, मैं वो वेट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला ये सपोर्टिंग, मैं कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ। मैं जब भी यू नो मैंने पहली फिल्म में हमेशा जब भी जो भी फिल्म करता हूँ, मुझे लगता है मैं लीड हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और फर्स्ट फिल्म में जैसे मैंने मैरी कॉम में किया, मेरे हिसाब से इट वॉज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। हाँ, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, लेकिन जैसा उनकी लव स्टोरी डेवलप की गई थी, जैसे वो एक दूसरे से मिले थे और फिर उसने अपने प्यार के लिए क्या क्या किया, अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने उस वे में उसको देखा था। और यहाँ पर मैंने देखा था कि एक भाई की स्टोरी है, एक भाई पे क्या बीतती है, बीच में जो कुछ रुकावटें आ जाती है उसमें, तो मैं उस वे में कभी जाता नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने आप को देखता हूँ कि मैं ही ये कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ही फिल्म का बोझ है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और सेम मैंने इस फिल्म में भी किया, मैंने कोशिश की है कि अपना बेस्ट दूँ। आई थिंक या अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, 4-5 फिल्म ओल्ड हूँ मैं,
लेकिन धीरे धीरे अभी जैसे मैं बहुत सालों से शामक सर से पर्सनली डांस सीख रहा हूँ, मैं डांस भी कर रहा हूँ हमारे मैं इससे पहले बहुत सारे कॉमेडी शोज़ कर चुका हूँ मैं थिएटर में कम से कम 25-30 प्लेस कर चुका हूँ कॉमेडी के, जो मेरी टाइमिंग काफ़ी लोगों ने सराही है, वो करने को मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊँगा। तो जैसा आप बोल रहे हैं इन सब में भी मौका मिलेगा मुझे करने। या व्हाई नॉट, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir.